Good afternoon, class. Good afternoon, ma'am. Okay, आपका सैटरडे को क्लास शेड्यूल करना था बट ड्यू टू सम रीजन शेड्यूल नहीं हो पा रहा था. Okay, so this Saturday we can plan. Okay. Yes, so we have done Banker's algorithm. I hope it is clear to you, everyone. Right? Is it clear to everyone? Yes, ma'am. So today we will discuss deadlock detection. Okay. Just give me a minute. Let me share PPT with you. I have shared a document which has few practice questions of Banker's algorithm. So you can practice those questions, and if you face any problem or any doubt in those questions, you can contact me. Okay, you can post your doubt in the group, or you can ask me in the class also. Okay. So I can show you. Just 1 minute. Yes. So can you see the PPT now? Yes, ma'am. Now it is visible. Okay. So it was example which we have done in the last class, and this is the few sub parts of your question. Okay. So like suppose this is a request. Suppose question says that there is an additional request of 102. Then whether this request will be granted or not. Okay, अगर हमें ये चेक करना है तो उसके लिए क्या करना होता है? First we need to check two conditions. चश्मा देखा. Aditya Raj, kindly switch off your mic. मैं आपको पूरा सोल्यूशन दिखा देती हूँ डॉक्यूमेंट में, इससे आपको और क्लियर हो जाएगा. यस, देखिए ये आपका डेडलॉक के ही नोट्स है, मैं आपको शेयर भी कर दूंगी ये. ठीक है, जैसे ये क्वेश्चन है, मैंने आपको जिसका पिक क्लिक करके आपको भेजा भी था. सपोज दिस इज द क्वेश्चन. Okay, and question is what will be the content of need matrix? So first you need to find this need matrix. Then if the question says if the system is in safe state, if yes, then what is the safe sequence? So you need to find the safe sequence for this given problem. So you will find the safe sequence by implementing the safety algorithm जो कि हम last class में कर चुके हैं. Yes or no? Yes, I'll share this PDF. Yes, we have completed this question. Now, next question is what will happen if process P1 requests one additional instance of resource type A and two instances of resource type C. अगर मेरा resource A कोई additional request कर रहा है, one instance type of resource A and one instance of type resource C, then what will happen? Whether my system will be in safe state or unsafe state. बेसिकली बेटा जो क्वेश्चन है ना, ये बहुत ही एक जनरल आपका रियल टाइम एग्जांपल से अगर मैं रिलेट करूं तो आप लोग को पता होगा, हम लोग बैंक में लोन के लिए अप्लाई करते हैं, राइट? और मैं आप इससे आपको यही पता चलेगा व्हाई वी कॉल इट एज बैंकर्स एल्गोरिथम. एज यू ऑल नो, वी अप्लाई फॉर लोन इन बैंक. ओके, आप जब भी अप्लाई करते हो तो बैंक कुछ टाइम लेता है उस लोन को अप्रूव करने के लिए. इट टेक्स सम टाइम टू अप्रूव दैट लोन. वो अप्रूवल हमारा किस पर डिपेंड करता है? कुछ तो हमारी पर्सनल डिटेल्स पर डिपेंड करता है और कुछ बैंक की डिटेल्स पर भी डिपेंड करता है. बैंक क्या चेक करता है? बैंक ये चेक करता है, सपोज करो किसी ने मुझसे अगर लोन लिया है तो उस लोन को प्रोवाइड करने के बाद वेदर आई विल बी इन सेफ स्टेट और नॉट. क्या मैं उसके बाद सेफ स्टेट में रहूंगा, नहीं रहूंगा? अब पता चले किसने करोड़ों रुपए का लोन ले लिया है, पता चला बैंक उसमें पूरा मतलब बैंक उसके बाद सेफ नहीं रहा. दैट कुड बी पॉसिबल. तो बैंक ये चेक करता है कि जब वो लोन प्रोवाइड कर रहा है किसी पर्सन को, किसी कस्टमर को, तो उसके बाद भी क्या वो बाकी कस्टमर्स को विड्रॉ करने के लिए कैश प्रोवाइड कर सकता है या नहीं.
ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर हो रही है। अगर कोई एडिशनल रिसोर्स किसी को चाहिए तो क्या उस एडिशनल रिसोर्स प्रोवाइड करने के बाद मेरा सिस्टम सेफ स्टेट में रहेगा या नहीं रहेगा। ठीक है, सो फॉर चेकिंग इट्स रिक्वेस्ट whether it will be granted or not, first I will implement resource request algorithm। ये मैं आपको तरीका बता रही हूँ, आपको किस तरीके से क्वेश्चन पेपर में करके आना है। ठीक है, उसमें हम दो कंडीशंस चेक करेंगे। फर्स्ट आई विल चेक whether the request is less than or equals to need। if it is so, then I'll proceed to second condition, which is request is less than or equals to available। if these two conditions are true, then I can, that means then again I will check whether my state will be in safe state or not। okay, or whether my system will be in safe state or not। okay, so here is a document। yes, so again I'm checking, I'm finding the safe sequence। अगर मेरे दोबारा सेफ्टी एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करने से मेरे को सेफ सीक्वेंस मिल जाता है, दैट मींस मैं उसकी रिक्वेस्ट को फुलफिल कर सकती हूँ। अगर मेरा सिस्टम का कोई सेफ सीक्वेंस नहीं मिल पाता है तो उस रिक्वेस्ट को फुलफिल नहीं किया जाएगा। इज इट क्लियर टू एवरीवन? कोई डाउट है किसी को यहाँ तक? else I'll proceed to the next topic, that is deadlock detection। okay, next is deadlock detection। okay, there are few steps। first one is we are allowing the system to enter deadlock state। पहले मैं allow कर रही हूँ कि मेरा system deadlock state में enter कर रहा है, तो I am not avoiding the deadlock। I am just letting the system to enter in deadlock। then after the deadlock state I will detect the deadlock। उसके बाद मैं क्या करूंगी, मैं deadlock को detect करूंगी। then अगर मुझे डेडलॉक मिलता है then I will use some recovery scheme to recover that deadlock। ठीक है, सबसे पहले क्या करा है मैंने, मैं सिस्टम को अलाउ कर रही हूँ डेडलॉक स्टेट में एंटर करने को। उसके बाद आई एम डिटेक्टिंग द deadlock by using some detection algorithm। after that I am using some recovery scheme to recover the system from deadlock। so if your system has single instance of each resource type, अगर आपके सारे resource type के सिर्फ single instances available हैं, then we can we can draw a wait for graph using resource allocation graph। हम क्या कर सकते हैं, जैसे यहाँ पर आप देखिए आपका ये resource allocation graph given है। here is a resource allocation graph। आप लोग को visible है बेटा? Yes, ma'am. Yes, ma'am. okay, here is a resource allocation graph। now see how we can draw wait for graph using resource allocation graph। okay, suppose if I talk about P1, so P1 process is here। now you tell me P1 is requesting for which resource? R1 R1। R1 और R1 बेटा किसने होल्ड कर रखा है? P2 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 ने होल्ड कर रखा है, तो इनडायरेक्टली P1 is waiting for which process? P2 P2. very good, so P1 is waiting for P2। okay,
मैम ये लास्ट क्लास में हो गया था। लास्ट क्लास में ही हो गया है, ठीक है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। बाकी इसमें हम ड्रॉ कर सकते हैं, जैसे P1 में बताया तो P1 वेट कर रहा है P2 को, तुम्हारी ये एज हो जाएगी। मैं इन शॉर्ट फिर से बता देती हूँ। P2 रिक्वेस्ट कर रहा है R3 के लिए जो कि P5 के पास है, तो P2 वेट कर रहा है P5 के लिए। ठीक है, यहाँ पे एज बन गई है। नेक्स्ट P2 R4 के लिए भी वेट कर रहा है। ठीक है, P2 R4 के लिए वेट कर रहा है, और R4 किसके पास है? P3 के पास। तो P2 से कहाँ चली गई एज आपकी? P4 पर। P2 R5 के लिए भी रिक्वेस्ट कर रहा है जो कि P4 के पास है। तो आपकी ये एज, सॉरी पहले ये एज बनी थी, फिर अब ये एज बन रही है। एंड P3 is requesting for R5 which is hold by P4. Therefore P3 is also waiting for P4, and P4 is requesting for R2 resource which is hold by P1. Therefore P4 is waiting for P1. ये आपका wait for graph है, and if there is a cycle in this wait for graph, that means there is deadlock. Okay, now next, if that solution, that detection was for single instance of each resource type, but if I have several instances of a resource type, आपके resource type, आपके resource के several instances अगर available हैं, तो उसके लिए we use a detection algorithm to detect the deadlock in the system. देखिए, अब आप लोग का, मैंने अभी डेडलॉक अवॉइडेंस में बताया था कि आपका जो एल्गोरिथम था उससे क्या पता चल रहा था कि आपका सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं एग्जिस्ट करता है। तो कहीं ना कहीं मुझे यहाँ से ये पता चल रहा है ना कि डेडलॉक है या नहीं है। अगर मेरा सिस्टम है और अगर मैं उसमें ये फाइंड कर लूं कि सेफ सीक्वेंस एग्जिस्ट करता है या नहीं करता है, अगर करता है मतलब मेरा सेफ है स्टेट, अगर नहीं करता है मतलब मेरे सिस्टम में डेडलॉक है, क्योंकि सिस्टम तो रन कर चुका है, मैंने उसने एंटर, मैंने अलाउ कर दिया है। और अवॉइडेंस में हम उस एल्गोरिथम को कैसे यूज कर रहे थे कि हम पहले ही चेक कर रहे थे। आप समझ पा रहे हैं इस चीज को? हमारा एल्गोरिथम वही सेम रहेगा इसके लिए भी, डिटेक्शन के लिए भी, बस फर्क क्या है, उसका यूज का फर्क है। अवॉइडेंस में मैं उसको एंटर नहीं करने दे रही थी, मैं उसको एंटर करने से पहले चेक कर रही थी कि सिस्टम मेरा सेफ स्टेट में है या नहीं है। डिटेक्शन में क्या है कि मेरा सिस्टम एंटर कर चुका है डेडलॉक में, और अब मैं डिटेक्ट करने के लिए चेक कर रही हूँ whether there is a safe sequence or not. Okay, so we can use the same algorithm. मैं सेम एल्गोरिथम और सेम सेफ्टी एल्गोरिथम से चेक करूंगी, और जब मैंने उस पर सेफ्टी एल्गोरिथम इंप्लीमेंट किया तो आई फाउंड दैट देयर इज अ सेफ सीक्वेंस P0, P2, P3, P1 एंड P4. ओके, विद रिजल्ट इन PI फॉर ट्रू, मतलब कि सारे मैंने सबके फिनिश में ट्रू हो गए, मतलब सारे मेरे प्रोसेस फिनिश हो गए हैं और मेरा सेफ सीक्वेंस ये निकल कर आया है। अब अगर मैं इसी क्वेश्चन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर देती हूँ, देखिए क्या होता है। यहाँ पर देखो P2 की क्या रिक्वेस्ट है, 000 रिक्वेस्ट है। अगर मैं ये कह देती हूँ कि P2 एक इंस्टेंस के लिए रिक्वेस्ट कर रहा है एंड इट इज रिक्वेस्टिंग एन एडिशनल इंस्टेंस ऑफ टाइप C, तो इसकी रिक्वेस्ट क्या हो गई? 001। ठीक है, देखो यहाँ पर अगर इसकी रिक्वेस्ट 001 होती है तो देखो कैसे हमारे यहाँ पर डेडलॉक हो सकता है। अवेलेबिलिटी बेटे मेरे पास यहाँ पर क्या है? 0, 0 एंड 0, एंड एलोकेशन इज 010, 200, 303, 0, 1, 0, 2, 0, 0, 3, 0, 3। ठीक है, बाकी हम बाद में देख लेंगे। अब अगर मैं स्टार्ट करती हूँ इसमें सेफ्टी एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करना, तो आई विल स्टार्ट बाय P0। बेटा P0 को देखो, P0 के रिक्वेस्ट क्या है? 000। तो मैं इसको कोई, मतलब इसे कोई रिक्वेस्ट नहीं है, डजंट नीड एनी एडिशनल रिसोर्स नाउ, सो वी कैन सिंपली इंप्लीमेंट दिस P0 प्रोसेस। यस और नो? यस, ओके। तो अब P0 मैंने इंप्लीमेंट किया, तो उसके बाद क्या होगा? जब वो कंप्लीट हो जाएगा तो इट विल रिलीज ऑल इट्स एलोकेटेड रिसोर्सेज। जो भी रिसोर्सेज मैंने इसको ऑलरेडी एलोकेट कर रखे तो उनको रिलीज करेगा नहीं करेगा?
तो इसलिए इसके पास क्या थे एलोकेटेड 0 1 0, तो इसको मैं क्या कर दूंगी, ऐड कर दूंगी अवेलेबिलिटी में। तो अवेलेबिलिटी अब क्या हो जाएगी आपकी 0 1 0। नाउ आई विल चेक फॉर process P1. P1 is requesting for 201. Is it possible to grant its request? No, because availability is less than its request. Okay, or you can say request is greater than the availability, so it is not possible to complete its request. So I'll skip this P1 and I'll come to P2. I'll check whether it is possible to complete its request. No, it is still not possible. Why? Because request is greater than availability. As you can see, it requires one instance of type C and there is no instance of type C available right now. So we cannot fulfill its request. So I'll skip P2 and I'll come to P3. So now you can see P3, is it possible to grant its request? No, it is still not possible because it requires one instance of resource A which is not available. And come to P4, is it possible? No, still not possible because it requires two instances of resource type C and there is no instance of resource type C available. So here you can see that no process is able to execute. Okay, there is only one process which is executed completely. बाकी processes मेरे execute नहीं हो पा रहे हैं. तो इससे क्या हुआ? This is deadlock. यहाँ पर deadlock आपका हो रहा है नहीं हो रहा? So when I found that there is no safe sequence, that means there is deadlock. Is it clear? और कौन कौन से प्रोसेस आपको डेडलॉक में है? P1 है, P2 है, P3 है, P4 है. क्यों? P0 तो आपका कंप्लीट हो गया है. So this process is not included in deadlock situation. Okay, now we'll come to the solutions. आपका इसमें है रिकवरी करना है. पहला सोल्यूशन है प्रोसेस टर्मिनेशन. फर्स्ट सोल्यूशन इज वी कैन टर्मिनेट द प्रोसेस. ओके, तो उसमें पहला है अबाउट ऑल डेडलॉक प्रोसेसेस. जैसे मेरे पिछले मैंने क्वेश्चन में बताया आपको, देयर वर 4 प्रोसेसेस व्हिच वर इन्वॉल्वड इन द डेडलॉक, P1, P2, P3 and P4. So one thing which we can do is we can abort all the deadlocked processes. Okay, तो उससे क्या होगा, मेरे चारों प्रोसेस है वो सारे मैंने अबॉर्ट कर दिए हैं. दूसरा सोल्यूशन, पर इससे प्रॉब्लम क्या हो सकती है, अगर मैं सारे डेडलॉक प्रोसेस को अबॉर्ट कर दूंगी तो सबका जितनी भी कंप्यूटेशन अब तक हुई होगी, हो सकता है कोई बिल्कुल ही कंप्लीशन पर हो, है ना, हो सकता है कोई जिसका आधा से ज्यादा काम हो चुका है. तो ऐसे प्रोसेस को भी अबॉर्ट कर दिया जाए तो मतलब क्या है कि आपने उनका जो कंप्यूटेशन था, जो उनका काम था, वो सारा क्या हो गया, वेस्ट हो गया. ठीक है, तो इसलिए तरीका इतना सही नहीं था. इसलिए एक दूसरा तरीका भी है, वो है अबॉर्ट वन प्रोसेस एट अ टाइम अंटिल डेडलॉक साइकिल इज एलिमिनेटेड. एक तरीका ये है कि आप एक एक करके प्रोसेस को अबॉर्ट करें. जैसे कि आपके पास 4 प्रोसेस डेडलॉक में थे, तो आप क्या करेंगे, पहले फर्स्ट को पिक करेंगे. ठीक है, पहले किसी एक को पिक करेंगे, उसको अबॉर्ट करेंगे. और सपोज करो आपका डेडलॉक साइकिल अगर एलिमिनेट अभी भी नहीं हुआ है, तो फिर आप सेकंड को पिक करोगे, उसको अबॉर्ट करोगे. और तब भी नहीं हुआ है, फिर आप थर्ड को पिक करोगे. आप इस तरीके से तब तक आप प्रोसेस को वन बाय वन अबॉर्ट करोगे जब तक कि आपकी डेडलॉक साइकिल एलिमिनेट ना हो जाए. ठीक है, वेट फॉर ग्राफ से. सो एक ये तरीका है, सॉरी नॉट वेट फॉर ग्राफ, जो आपका साइकिल बनती है प्रोसेस की, उससे. सो अब बात आती है कि हम कैसे चूज करेंगे कि हमें किस प्रोसेस को अबॉर्ट करना है. पहली बात तो वो डिपेंड करता है आपकी प्रायोरिटी पे, आपके प्रोसेस की प्रायोरिटी क्या है. अगर सपोज करो दे आर सम हाई प्रायोरिटी प्रोसेस, दे आर सम लो प्रायोरिटी प्रोसेस, तो फिर क्या होगा, जो मेरी लो प्रायोरिटी प्रोसेस है मैं उसको पहले अबॉर्ट करूंगी एज कम्पेयर टू हाई प्रायोरिटी प्रोसेस. दूसरा तरीका ये है हाउ लॉन्ग प्रोसेस हैज कंप्यूटेड एंड हाउ मच लॉन्गर टू कंप्लीशन. एक हमारा ये भी कंस्टेंट है जिसपे हम ये चूज कर सकते हैं, जिसके बेस पर हम ये चूज कर सकते हैं विच प्रोसेस should be chosen to abort. एक तरीका ये है कि हम ये चेक कर ले कि हमारा प्रोसेस का कितना काम हो चुका है. अगर किसी प्रोसेस का ज्यादातर काम हो चुका है, वो बहुत ही करीब है अपने कंप्लीशन के, तो हम उस प्रोसेस को अबॉर्ट ना करेंगे. अगर ठीक है, अगर मेरे पास 2 प्रोसेस है, एक है जिसका 80% काम हो गया है, एक है जिसका 20% काम हुआ है,
तो मैं 20% वाले को अबॉर्ट करने की कोशिश करूंगी, 80% वाले को नहीं। रिसोर्सेज द प्रोसेस हैज यूज्ड, कि प्रोसेस ने कौन से रिसोर्सेज ले रखे हैं, तो ये भी डिपेंड, इस पे भी डिपेंड करता है ये, क्यों, अगर कोई प्रोसेस है और उसने वो रिसोर्सेज ले रखे हैं जिनकी वजह से ही डेडलॉक हो रहा है, तो मैं क्या करूंगी, उसके प्रोसेस, उस वाले प्रोसेस को अबॉर्ट कर दूंगी। ठीक है, और अगर कोई प्रोसेस है जिसके रिसोर्सेज से डेडलॉक पर फर्क नहीं पड़ रहा है, तो मैं उस प्रोसेस को अबॉर्ट नहीं करूंगी। रिसोर्सेज प्रोसेस नीड्स टू कंप्लीट, प्रोसेस को कौन से रिसोर्सेज चाहिए, इस पर भी हमारा डिपेंड करता है। ठीक है, हाउ मेनी प्रोसेसेस विल नीड टू बी टर्मिनेट, कितने प्रोसेस टर्मिनेट करने होंगे। ठीक है, ये भी डिपेंड करता है, थोड़ी आप सारे कर दोगे, हम कितने कर सकते हैं, अगर रियल टाइम प्रोसेस होंगे तो इट वॉन्ट बी पॉसिबल। इस प्रोसेस इंटरैक्टिव और बैच, क्या प्रोसेस आपका इंटरैक्टिव है या बैच है, क्यों, क्योंकि बैच प्रोसेस कैसे होते हैं कि आपने एक बार सबमिट कर दिया, उसके बीच में आप इंटरैक्ट नहीं कर सकते, तो आपने अगर सबमिट कर दिया आप उसको बीच में नहीं रोक सकते, अब जब वो कंप्लीट हो जाएगा तभी वो आएगा आपके पास। ठीक है, इंटरैक्टिव में क्या है कि आप बीच में इंटरैक्ट कर सकते हो, कुछ मॉडिफाई कर सकते हो, तो हमें ये भी देखना पड़ता है अबॉर्ट करने से पहले कि हमारा प्रोसेस कैसा है, इंटरैक्टिव है या बैच है। ओके, नेक्स्ट इज just give me a minute, okay? Yes. So, नेक्स्ट आपका तरीका है रिसोर्स प्रियम्पशन, कि हम रिसोर्स को प्रियम्प्ट करा दें। अगर कोई रिसोर्स है, सपोज किसी ने होल्ड कर रखा है किसी प्रोसेस ने और उसकी वजह से डेडलॉक हो रहा है, तो मैं उसके रिसोर्सेज को प्रियम्प्ट करा दूंगी। ठीक है, तो सिलेक्टिंग अ विक्टिम मिनिमाइज कॉस्ट, मतलब मैं ऐसे विक्टिम को सिलेक्ट करूंगी, ऐसे प्रोसेस को सिलेक्ट करूंगी जिससे कि मेरा कॉस्ट मिनिमाइज रहे। ठीक है, सपोज करो कोई प्रोसेस है जिसका कंप्लीट हो चुका है आधे हजार टास्क, और अगर मैं उसके रिसोर्स प्रियम्प्ट करा दूंगी तो मेरा क्या होगा, मेरा कॉस्ट ज्यादा होगा, क्यों, क्योंकि भाई मैं उतना काम कर चुकी हूँ, मेरा सारा काम वेस्ट जाएगा। ठीक है, या फिर सपोज आपके रियल टाइम प्रोसेस है कोई, तो रियल टाइम प्रोसेस को तो मैं उसके रिसोर्स प्रियम्प्ट करा ही नहीं सकते, बिकॉज दे आर मोर इम्पोर्टेंट, राइट। तो मैं इस तरीके से विक्टिम को सिलेक्ट करूंगी जिससे कि मेरी कॉस्ट मिनिमाइज्ड रहे। नेक्स्ट इज रोल बैक। रोल बैक इज रिटर्न टू सम सेफ स्टेट, रीस्टार्ट प्रोसेस फॉर दैट स्टेट। ओके, आपका क्या होता है, आपके लैपटॉप्स में भी आपका एक चेक पॉइंट आप सेट करते हो, राइट। तो जब भी आपके लैपटॉप में कोई प्रॉब्लम आती है तो यू जस्ट रीस्टार्ट दैट चेक पॉइंट, और आपका जो लैपटॉप है बिल्कुल उस तरीके से हो जाता है जैसा आपका उस चेक पॉइंट स्टेट में होगा। तो वैसे ही आपका प्रोसेस के साथ होता है, आपके हर एक प्रोसेस, आपका जो प्रोसेस है उसका स्टेट सेव होता है। अगर आपको पता चला थोड़ी देर बाद डेडलॉक हो गया है, तो आप वापस से उस स्टेट पे रोल बैक कर सकते हो, आपका सिस्टम वैसा का वैसा ही रहेगा। ओके, next is starvation. Same process may always be picked as victim, include number of rollback and cost factor. ऐसा भी हो सकता है that you always select a single process, a particular process. तो उससे क्या होगा, वो प्रोसेस कभी एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाएगा। So we need to take care of that thing also.
Okay. So this was a deadlock detection and recovery. So this is done from my side. Any doubt from here? No, ma'am. Any doubt from anyone? Okay, I have sent a PDF, okay, in which there are some practice questions. Do practice them. And if you find any doubt, okay, you can post that doubt in the group or you can ask me in the next class. Okay. In next class, we'll start the next chapter, that is memory management. और आपका इस सैटरडे को एक्स्ट्रा क्लास होगी, ठीक है? प्रोबेबली 11 बजे से आपकी होगी क्लास, ठीक है? Just give me a minute. Yes, I am waiting for 2 minutes. If you have any doubt, you can ask. You can explain me again the selecting of victim of minimize cost. Yes, इसमें ये है बेटा, अगर आप किसी पर्टिकुलर प्रोसेस को सेलेक्ट कर रहे हो और उसको टर्मिनेट कर रहे हो या फिर उसके रिसोर्स प्रीएम्प्ट करा रहे हो और उसका आधे ज़्यादा टास्क हो चुका है, तो आपने जो अब तक सीपीयू उसको दिया था, सीपीयू साइकिल जो अब तक उसने यूज की थी, वो तो वेस्ट हो गई ना? Yes, Yes ma'am. or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो हमें इस तरीके से विक्टिम सिलेक्ट करना है जिससे कि मेरी मिनिमाइज्ड कॉस्ट रहे. Okay, ma'am. Okay. Okay, ma'am. Yes, anyone else? Okay, so this is done from my side. This is the complete PPT and I'll send you the notes also of this chapter. आप लोग की वेडनेसडे क्लास होती है क्या? शुभांशी? Yes, ma'am, है 8 से 9 p.m. 8 से 9 a.m. मॉर्निंग 8 to 9 a.m. ठीक है, ठीक है. चलिए क्लास, थैंक यू. नाउ यू मे लीव. Thank you, ma'am. क्वेश्चन जरूर देख लेना सभी लोग, जो मैंने पीडीएफ सेंड किए है Yes, ma'am. उसमें काफी क्वेश्चंस हैं और मतलब हर टाइप का क्वेश्चन है, किस तरीके से आपके आ सकते हैं क्वेश्चन, ठीक है?